Today we are starting from the topic that is plasma membrane. It is also called as plasma or cell membrane. As far as its structure is concerned, it is the outermost component of cell because it forms a contour area about the cytoplasm and protects the cytoplasm and nucleus from the outer environment. Its thickness is around about 8 to 10 nanometer. It encloses the cell and form contact with the surrounding environment. It separates cytoplasm from the external environment. It is trilaminar structure, means the structure consists of three layers, that is the outer layer, the inner layer and the middle layer. You can see in this diagram that you can see the ball-like structures, that is the outer surface of this cell membrane, and the next one is the little bit two tail-like structures in the middle portion, and the other surface contains another ball-like structures. Means one is the outer surface, the middle one is the lucent-like structure, and the other one is the inner surface. The outer and inner layer structures are the electron dense structures, means through which electron cannot pass immediately. While the electron lucent layer, that is the middle layer, so the electron can pass through this layer. If we talk about the biochemically, it consists of the phospholipid bilayer and the glycolipids and cholesterol. Means a structure consists of three main types of biochemical. These are the phospholipid bilayers, glycolipids and cholesterol. Phospholipids make the highest percentage, means phospholipids are a prominent component of the cell membrane, while these phospholipids are amphipathic molecules, means they have positive and negative end. These are polar. They have one polar hydrophilic head and two non-polar hydrophobic tails. For example, in this case, in this diagram, you can see the ball-like structure, these are the hydrophilic ends, while the two tail-like structure, these are basically phospholipids in nature, that has two polar ends. One is the hydrophilic end, that is the ball-like structure. For example, the ball-like structure are hydrophilic ends, while the two tail-like structure that are towards the middle side, these are the hydrophobic ends. Polar head of each molecule faces the membrane surface, means कि जो polar head है दोनों का जो ball like structure है वो क्या करता है, membrane के surfaces को जो है वो उस side पे lie करता है. अगर हम उसके inner side पे भी देखें और outer side पे भी देखें cell membrane की, तो वो चूँकि ball like structure है, phospholipids हैं हमारे पास, उसके जो हाइड्रोफिलिक एंड्स हैं वो किस साइड पे हैं, दोनों के आउटर सरफेस पे भी हैं और इनर सरफेस पे भी हैं. लेकिन जो हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं, दीज आर द टेल लाइक स्ट्रक्चर्स, वो किस तरफ वो फेस करते हैं, मिडल लाइन की तरफ वो फेस करते हैं. Glycolipids are restricted to the extracellular aspect of the outer leaflets. अगर हम ग्लाइकोलिपिड्स की बात करते हैं तो जिस तरह हमने डिस्कस किया कि उसमें हमारे पास कौन सी चीजें होती हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल होता है. जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं वो तकरीबन जो आउटर लीफलेट है यानी सेल मेम्ब्रेन का जो आउटर सरफेस है, दैट आर टुवर्ड्स द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, उसकी तरफ जो है, तो उस साइड पे हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स लाई करते हैं, इनर साइड पे इतने नहीं होते. कोलेस्ट्रॉल constitute about 2% of the plasma lipids, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिपिड्स है उसमें कोलेस्ट्रॉल की कितनी क्वांटिटी होती है, अराउंड अबाउट 2%, एंड इज प्रेजेंट इन बोथ लीफलेट्स, मींस इनर साइड पे भी लाई कर सकते हैं और आउटर साइड पे यानी आउटर सरफेस पे भी जो है वो लाई करते हैं, और वो स्ट्रक्चर में इंटीग्रिटी जो है मेम्ब्रेन की उसको मेंटेन करते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. Cholesterol and phospholipids can form special structures that are called lipid rafts.
कुछ लिपिड राफ्ट जो हैं वो बनाते हैं। कौन सी चीज़ें बनाते हैं? कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड, sorry, phospholipids. So we were talking about the lipid raft. Basically, these are the cholesterol and phospholipid combination that form special structures, and they help the integral protein movements of the plasma membrane. So there are various types of proteins that are attached with the plasma membrane, and they form around about the 50% of the plasma membrane composition. Various types of proteins are the integral proteins or the integral membrane proteins. They are mostly present inside the phospholipid bilayer. Some peripheral proteins or amphipathic proteins are also present, and they are mostly attached with the outer or the inner surface of the plasma membrane. For example, in this diagram you can see some proteins that are embedded inside the cell membrane. These are called the integral proteins, while some proteins are present at the surface of the membrane. These are called the peripheral membrane proteins. So next type of proteins are the transmembrane proteins. These are actually the integral proteins, but they are embedded throughout the plasma membrane or cell membrane. These transmembrane proteins mostly help in the as a carrier channels. They help to transmit various types of electrons or the charged particles. They can help in the passage of any polar particles or the electron particles through these cell membrane. Caveoli. Caveoli has been derived from the Latin word that means the little cow, cave. These are actually the pear-shaped invaginations. If the cell membrane is embedded inside the membrane, some part of the membrane is invaginated inside. These structures are called as caveoli, and they mostly help in the ingestion of particles inside the cell, or the exclusion of materials from the cell. They also help in the signaling events and uptake of some certain proteins like albumin. Now there are special terms used. These are the glycoproteins. Glycoprotein means some integral proteins that are attached with the oligosaccharides. Means it's a combination of simple carbohydrates with the proteins. If integral proteins that are present on the surface of the cell membrane, when these are attached with the polysaccharides, then we give them a name that is called as proteoglycan. Another important structure is the glycocalyx, that is also called as cell coat. Glycocalyx is basically a fusy coat or the liquid coat present on the external surface of the cell membrane that is mostly formed by the carbohydrate molecules that help in the recognition of various signals. यानी जो हमारे पास कुछ सिग्नल्स वगैरह आते हैं उसके वेरियस फंक्शंस हैं जो कि सिग्नल्स सेल की तरफ आते हैं, तो सेल की जो सिग्नल्स है उसके रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं, उसकी पहचान में हेल्प करते हैं. And these are mostly attached with the integral proteins that are present on the external surface of cells. The function of these glycocalyx are the recognition of signals, cell adhesions. Cell adhesion means when the cells are attached with one another. We will discuss in the next classes, inshallah. They also act as a receptors or binding site for the blood-borne hormones. When the hormones come, then these glycocalyx try to recognize which type of hormone is coming, and then the cell give response accordingly. What are the functions of the plasma membrane? It performs various functions like communication due to the various types of receptors present on the cell membrane, and they respond to these signals. Intercellular connections. Inter means between,
there are some terms used. You must know about these terms. One is the intra and other one is the enter. Intra means within. When some activities occurs inside the cell, we call them intracellular activities. When we use the term intracellular, it means between the cells. Means intercellular connection. It helps in the connection of two cells that are lying close together. So we call them intercellular connection. दो cells के दरमियान जो connection होता है उसमें भी help करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जाहिर बात है उसके साथ various types of जो filaments वगैरह अटैच होते हैं, फिर उसके थ्रू जो है एक सेल दूसरे सेल के साथ अटैच होता है टाइटली और लूजली. उसको भी हम डिस्कस करेंगे जब हम सेल एडहेजन पढ़ेंगे. It also acts as a physical barrier. फिजिकल बैरियर के तौर पे सेल मेम्ब्रेन काम करता है. बास चीजें जो कि सेल के अंदर नहीं जा सकती, जो सेल की जरूरत नहीं होती, सेल उसको अडॉप्ट नहीं कर सकती, तो वो चीजें सेल के अंदर नहीं जा सकती. तो इसलिए एक रुकावट के तौर पे काम करता है जिसको हम फिजिकल बैरियर कहते हैं. और वो चीजें फिर सेल के अंदर नहीं जा सकती या सेल से बाहर नहीं जा सकती. सेलेक्टिव परमेबिलिटी, इट मींस those things which are needed for the cell, they can be engulfed or they can be endocytosed by the cell, but those things which are not necessary or not required for the cell, they cannot get entry into the cell. जिन चीज़ों की सेल को ज़रूरत होती है तो वो जो है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू चली जाती हैं, सेल उसको एंगल्फ कर लेती है. लेकिन जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती तो वो क्या करती है, सेल उसको बाहर निकालती है. और ये क्या कहते हैं, इट हेल्प्स रेगुलेट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ आयंस. आयंस जो है वो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन में से पास नहीं हो सकते. उसके लिए कुछ कैरियर जो है चैनल्स होते हैं, कैरियर्स होते हैं, प्रोटीन्स स्ट्रक्चर्स होती हैं, पोर्ट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो वो जो है उसके थ्रू फिर सेल के अंदर जा सकते हैं. इट आल्सो हेल्प इन द वेस्ट मॉलिक्यूल्स थ्रू मेम्ब्रेन. मींस वेस्ट molecules that are not needed for the cell, they can be excreted from the cell. It also helps to maintain the structure and functional integrity of cell. सेल की जो बाकायदा अपनी एक शेप है, उसकी जो शक्ल है, उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करती है. Next one is the nucleus. Nucleus we also call it the control room of the cell. ये एक सेल का कंट्रोल रूम है. सारे सेल की एक्टिविटीज जो है वहाँ से कंट्रोल होती है. बिकॉज इट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जिसकी बेस पे जो है वो सारी सेल की जो एक्टिविटीज होती है, उसकी जो रेगुलेशंस होती हैं, उसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं. नो टॉकिंग अबाउट द शेप, स्ट्रक्चर एंड पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस दैट वेरीज बिटवीन सेल टाइप्स. नो वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट. The shape of these cells, the nucleus can vary. For example, some nucleus are round in shape, as you see in various types of cells. जिस तरह आप मुख्तलिफ किस्म की जो cells देखते हैं तो उसमें कुछ cells का जो nucleus है वो round shape का होता है. For example, जो blood cells वगैरह हैं कुछ उसमें अमूमन round shape है. या जो हमारे पास कुछ जो glands हैं, जिस तरह सीरस gland है, सीरस ग्लैंड का भी हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो राउंड शेप में होता है. इसके अलावा कुछ जो है हमारे पास फ्लैट शेप में भी होते हैं. जिस तरह हमारे पास म्यूकस ग्लैंड होते हैं तो उसके सेल का न्यूक्लियस जो है वो फ्लैट फॉर्म में होता है. किसी का जो है लिगुलेटेड होता है, मींस वन न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ लोब. तो लोब लिगुलेटेड फॉर्म में भी होता है जिस तरह न्यूट्रोफिल में होता है. ठीक है, you will see it in the next classes. आप उसको next classes में देखेंगे इंशाल्लाह. इसके अलावा जो है position of nucleus also varies accordingly due to the function of these cells. In some cells it is present in the center of the cell. कुछ cells के बिल्कुल दरमियान में जो है वो लाई करता है. और कुछ cells इस तरह के हैं कि जिसमें अगर सेंट्रल में लाई करता है तो हम उसको सेंट्रली लाई कहते हैं, सेंट्रिक पोजीशन पे करते हैं. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं द न्यूक्लियस इज लाइक सेंट्रिक. और कुछ जो है एक्सेंट्रिक होता है. ठीक है, एक्सेंट्रिक का मतलब ये है कि एक पेरिफेरी पे वो लाई कर रहा है उसका न्यूक्लियस. जिस तरह हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं,
स्केलेटल मसल में अगर आप उसका न्यूक्लियस देखेंगे तो वो आपको बकायदा किसी पेरिफेरी पे नजर आएगा, ठीक है। या हमारे पास फैट सेल्स हैं, फैट के जो टिश्यू है वहां पे अगर आप देखते हैं तो वहां पे भी आपको जो है वो साइड पे नजर आएगा, पेरिफेरी पे नजर आएगा। इसके अलावा कुछ हमारे पास इस तरह की भी सेल्स हैं जिसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, अमूमन यही होता है कि सिंगल होता है, लेकिन बास हमारे पास कुछ इस तरह की भी सेल्स हैं जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड है, उसमें जो है न्यूक्लियस 2-3 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसके एग्जांपल हमारे पास स्केलेटल मसल की है। स्केलेटल मसल अगर आप देखते हैं तो उसमें जो है आपको 2-3 न्यूक्लियस उसके पेरिफेरी पे मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ लिम्फोसाइट राउंड न्यूक्लियस होता है। ग्रेनुलोसाइट्स जो हमारे पास होते हैं जिस तरह न्यूट्रोफिल्स हो गया तो उसमें हमारे पास लोबुलेटेड न्यूक्लियस होता है, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है। Centrally located in many cells, but in some may be located at periphery like fat cells and skeletal muscle cells. Some cells have a single nucleus, but some are multinucleated. For example, in osteoclast. Osteoclasts are specialized type of cells that are present inside the bone. These are also called as bone-eating cells. इसको हम bone-eating cells भी कहते हैं। बोन में मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होते हैं, कुछ ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, कुछ ऑस्टियोसाइट्स होते हैं और कुछ जो है हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट का क्या काम है कि वो सेल को क्या करते हैं, सॉरी बोन को ईट करते हैं। जब आपकी बॉडी में फॉर एग्जांपल कैल्शियम की कमी आती है, बोन जब हमारे पास किस चीज़ का बना होता है, मेनली उसमें कैल्शियम एंड फास्फोरस होते हैं। आपके ब्लड में कैल्शियम का एक स्पेसिफिक लेवल है, अगर वो लेवल आपका डिक्रीज हो जाता है तो आपके पैराथायराइड हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं। वो कैल्शियम लेवल, ब्लड जो कैल्शियम लेवल है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो अगर आप कैल्शियम अपने फीड में नहीं ले रहे, अपने फूड में नहीं ले रहे, तो आपकी बॉडी क्या करती है, पैराथायराइड हार्मोन के थ्रू बोन के जो ऑस्टियोक्लास्ट है उसको एक्टिवेट करते हैं। तो ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं कि वो वहाँ से कैल्शियम के जो डिपॉजिट्स हैं वहाँ से वो कैल्शियम को रिलीज करते हैं, बोन की जो है डिग्रेडेशन शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके ब्लड के कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो इसकी वजह से फिर आपकी जो हड्डियां हैं वो कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपकी बॉडी ने ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन कर रहा है। तो कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं, ये बोन्स में प्रेजेंट होते हैं, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। Some mammals and erythrocytes like human cells do not have nucleus, but fish, birds have nucleus. हमारे पास कुछ एरिथ्रोसाइट्स हैं जिस तरह ह्यूमन बीइंग्स के, तो उसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन जो हमारे पास बर्ड्स के हैं, रेप्टाइल्स के हैं, कैमल्स वगैरह के हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, बाकायदा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एरिथ्रोसाइट्स। Talking about the structure of the nucleus, it is enveloped by a nuclear membrane. यानी न्यूक्लियस के अंदर जो कंटेंट्स हैं, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, उसको किस चीज ने घेरा हुआ है, न्यूक्लियर एनवेलप ने घेरा हुआ है। जिस तरह सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको किसने घेरा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन को। इस तरह जो न्यूक्लियस है उसका भी बाकायदा एक न्यूक्लियर एनवेलप है, एक स्ट्रक्चर है, वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, उसने घेरा हुआ है। Nucleus is enclosed by a nuclear envelope that contains specialized pores. There are some pores that are present on the nuclear membrane, and you can see the structure of this nuclear membrane in this diagram. उसमें आप देख सकते हैं बाकायदा कि उसके अंदर various pores जो है present होते हैं। These pores control the passage of material between the cytoskeleton and nucleus. यानी जो हमारे पास न्यूक्लियस है और इसके अलावा जो हमारे पास सेल का बाकायदा दूसरा स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म वगैरह, उसके दरमियान अगर कांटेक्ट होना है, यानी पैसेज ऑफ मटेरियल है, तो वो इसके थ्रू होती है। और वो कौन सी चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के थ्रू होती है। साइटोस्केलेटल मटेरियल होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह होते हैं, उसके थ्रू जो है ये पैसेज ऑफ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह होता है। Nuclear envelope comprised of two concentric units, membrane separated by narrow space, round about 25 to 70 nanometer in thickness, and this space is called the perinuclear space. यानी इस डायग्राम में आप देखें, इसमें आपको बाकायदा दो लेयर्स नजर आनी है। ये 3D डायग्राम है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको बाकायदा जो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, तो एक जो है आउटर सरफेस है और एक जो है उसका इनर सरफेस है।
मींस न्यूक्लियर एनवेलप का एक आउटर सरफेस है जो कि साइटोप्लाज्म के साइड पे है और एक दूसरा साइड है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म के साइड पे है। तो ये दोनों लेयर जो है उसके दरमियान एक दूसरा दरमियान में जो है एक स्पेस है, उसको हम क्या कहते हैं दो लेयर्स के दरमियान? पीरिक न्यूक्लियर स्पेस। हमेशा के लिए जो पीरिक का वर्ड है इट मींस राउंड, अराउंड, किसी चीज के गिर्द। ये टर्म सीखा करें, ये आगे आप आएंगे जिधर भी आएंगे उसका ये मतलब होगा। पीरी मींस अराउंड, यानी उसके करीब। न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियस के करीब जो इर्द गिर्द स्पेस होगा उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज द पीरी न्यूक्लियर स्पेस। Outer membrane is studded with ribosomes and may be continuous with rough endoplasmic reticulum. जो आउटर सरफेस है हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप का, उसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं और राइबोसोम्स मोस्टली किस चीज कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। और इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। On inner side of membrane nuclear lamina is present. अब जो इनर साइड है मेम्ब्रेन का यानी न्यूक्लियर एनवेलप का, उसके साथ क्या चीज होते हैं? एक इनर लेमिना अटैच होता है, एक जो है लेमेंस होते हैं हमारे पास, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, वो बाकायदा एक लेयर सी बनाते हैं, उसके साथ अटैच होते हैं इनर साइड पे। लेमेन प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू न्यूक्लियस। वो क्या करते हैं? न्यूक्लियस को बाकायदा एक जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, उसके इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। At interval nuclear envelope contains some nuclear pores, उसके ऊपर न्यूक्लियर पोर्स मौजूद होते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप में मटेरियल पास थ्रू दीज पोर्स स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड बाय प्रोटीन्स ऑफ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ये जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है ये बेसिकली किस चीज का बना होता है? वो डिफरेंट प्रोटीन्स का बना होता है और इन ही प्रोटीन्स के थ्रू जो है किसी चीज ने अगर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ जाना है तो वो ये पोर उसको कंट्रोल करते हैं। उसी के थ्रू का, जिस तरह अगर कोई चीज फॉर एग्जांपल आयनिक पार्टिकल की अगर हम बात करते हैं, दे कैन नॉट पास डायरेक्टली, तो वो डायरेक्टली अटैच वो नहीं जा सकते, तो उसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो कि इन ही कॉम्प्लेक्स पोर्स जो हैं उसके साथ अटैच होते हैं वो प्रोटीन्स, और उसके साथ वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। फिर वो प्रोटीन्स लेके जो है उसको अंदर की तरफ लेके जाते हैं, फिर उसने जो एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है तो वो इनर साइड पे दूसरे प्रोटीन्स होते हैं, फिर वो उसके साथ अटैच हो जाते हैं, फिर उसमें जो एक्टिविटी या जो रेगुलेशन उसकी होती है उस प्रोसेस की, तो फिर वो अंदर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, मींस जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है या जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के डिफरेंट इंटीग्रल या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है सेल मेम्ब्रेन की, तो वो उनका भी यही फंक्शन है, तो वो प्रोटीन्स के बेसिकली बने होते हैं ये पोर्स वगैरह। This is the anatomy of nucleus. On the outer side you can see various types of nuclear pore through which various types of ribosomes are attached, and these ribosomes are again attached with the endoplasmic reticulum, especially of the rough endoplasmic reticulum that help in the formation of various types of proteins. And those cells having much capability of protein, they must have much number of rough endoplasmic reticulum. जिस चीज ने, जिस सेल ने ज्यादा प्रोटीन्स बनाने होंगे तो उसके लिए हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, या जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी वहाँ पे ज्यादा होने चाहिए। जिन सेल्स में स्टेरॉइड्स की फॉर्मेशन करनी है, स्टेरॉइड्स वगैरह बनाने हैं, तो उसमें हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये जो न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर जो हमारे पास जेल लाइक मटेरियल है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको हम कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं या न्यूक्लियर सेप भी हम उसको कहते हैं। बेसिकली क्रोमैटिन इज मेड ऑफ डीएनए एंड बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है उसमें ज्यादातर हमारे पास क्या होता है? क्रोमैटिन मटेरियल होता है, और क्रोमैटिन किस चीज का बना होता है? डीएनए और बेसिक प्रोटीन का हिस्टोन का बना होता है। क्रोमैटिन की फिर दो किस्में हैं हमारे पास, एक हेटेरोक्रोमैटिन है और एक यूक्रोमैटिन है।
हेटेरोक्रोमाटीन इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द क्रोमाटीन, मींस अगर डीएनए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो हम उसको हेटेरोक्रोमाटीन कहेंगे, अगर वो लूजली फॉर्म है, लूजली पैक्ड है, तो हम उसको क्या कहेंगे, ये यूक्रोमाटीन है। हेटेरोक्रोमाटीन जो है वो इंटेंस हेमोटॉक्सिलिन और बेसिक डाई स्ट्रैंड होता है। जो हमारे पास हेटेरोक्रोमाटीन है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जब हम उसको सेल को स्टैंड करेंगे तो उसके अंदर जो हेटेरोक्रोमाटीन है वो ज़रा डेंसली स्टैंड होंगे, उसका कलर हमारे पास थोड़ा सा डार्क आएगा। लेकिन जो यूक्रोमाटीन है वो थोड़ा सा इतना डार्क कलर नहीं रहेगा।